उसके बाद 250 की फिर बनाई, फिर 1750 की बनाई। क्योंकि ये बिजनेस को बस यही यही एक आज जो नए लोग बैठे हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे ये बता रहे हैं, कई लोगों को लगता है कि ऐसे बोल रहे हैं ऐसे फेंक रहे हैं, लिस्ट बनाने से क्या होता है। हमारी 1750 की लिस्ट में सिर्फ 10 बंदे हमने इनको प्लान दिए थे। आज हम आरटीसी हैं आपके सामने, अभी बाकी लिस्ट हमारी पड़ी हुई है। और दूसरी बड़ी बात, दिमाग नहीं लगाया दिल लगाया, मैं बार बार स्टेज पे हमेशा से बोलती आ रही हूँ। सबसे जरूरी बात है कि दिमाग, और ये सोच मेरी खुद की थी, दिमाग नहीं लगा, सोचे चलो कोई बात नहीं, दिमाग नहीं लगाते दिल लगाकर काम करते हैं तो करके देखते हैं, तो आपके सामने खड़े हैं। पर फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, अपनी गलतियों की वजह से मैं आज शायद सीटीसी लीडर होती है, अगर वो भी हम अप्लाई ने पूरा साथ दिया हमारी अपनी गलती की वजह से आज हम आरटीसी हैं। मैं बड़ी अचीवमेंट नहीं मानती इस चीज को, क्योंकि हम वेडिटी पर मेरी खुद की विक्की से ये बात होती थी कि नए लोगों को पता ही नहीं काम कैसे करना है। वो लोग जूम पर भी देख रहे हैं, टीम में बड़े प्रॉब्लम आती है, बड़ी ज्यादा, मतलब कि वो आ जाते हैं, चैलेंज आ जाते हैं, तो लगता है कि इस बीडीटी की बड़ी बड़ी वैल्यू है। मैं आज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, 2 दिन ट्रैवल किया, गाड़ी भी चलाई विक्की सर के साथ मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग की है गाड़ी चलाने की, चंडीगढ़ चला कर गई, कल वहां पर भी नंगल में भी चलाई गाड़ी। तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, पर मैंने जब देखा प्रदीप और की आज सर की आज वो है बीडीटी, तो टीम को भी बोला, वो कहने कहने में मैं थोड़ी लेट हो गई क्योंकि उनको साथ में लेकर आना था, नए लोग थे। तो आप ये बीडीटी लगाइए, जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे कीजिए। और जो नए लोग सुन भी रहे हैं, बीटीटी देख रहे हैं जूम पर, सभी से कहना चाहती हूँ कि ये काम हम अपने दिमाग से नहीं कर सकते, दिमाग कितना सा भी लगाएंगे अचीवमेंट नहीं होगी। सुनेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप 100% के 1000% यहाँ से कामयाब होंगे। 1750 की लिस्ट, मैडम ने कितनी लिस्ट बनाई? 1750 लोगों की, और सर की अलग है। सत श्री अकाल जी दोस्तों, मैम ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲਿਸਟ 500 ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ 1750 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਅਲੱਗ, ਮੇਰੀ 1100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 1750 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 1100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਪੌਕਟ ਡੈਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫੋਨ ਚੱਕੂਗਾ ਤੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟ ਵੱਧਦੀ ਆ ਕੰਮ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ 2 ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਖੁਦ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਰ ਦੀ ਬੀਡੀਟੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੀਡੀਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੀਡੀਟੀ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 4 ਕੰਮ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਕੇਬਲ ਘਰੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ 1500-1600 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 4। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਾਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, 45 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਖਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੱਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ,
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 5-6 ਸਾਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ। बस एक आपको मैंने बात बतानी है कि अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जैसे हमने बताया गया था, सब लोगों ने गाइड किया कि दिमाग नहीं लगाना, दिल लगाकर काम करना है। आज मैं अपनी टीम में खुद फील कर रही हूँ, लोग लिस्ट पे काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हमने की आपको उसका फायदा क्या मिला? हमने की, मैंने फोटो भी खींच रखी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने फोन से फोटो दिखाती हूँ। आप कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ बड़े रैंक के लोग भी बैठे हुए हैं। हमने स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया 2-2.5 महीने के पहले, हम डीटीसी थे क्योंकि हमने लिस्ट पर काम किया था, हॉट पे काम किया पहले, जैसे हॉट वार्म कोल्ड बताया जाता, लोग नहीं ध्यान देते इस बात की तरफ, कहते ये तो ऐसे बोल रहे हैं, हमारे दिमाग में है। अभी भी लोग जितने यहाँ बैठे हैं 99% मैं बता सकती हूँ कि ये सभी लोग अपने दिमाग से ही अब प्लान करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली हो रहा है। मैंने कई लोग नए लोग डेली ज्वाइन होते हैं, कोई लिस्ट पर काम नहीं कर रहा, नए कोड लाकर अपलाइन के सामने बिठा दिए जाते हैं, आज इसका प्लान है, आप प्लान कीजिए। हम ये सोचकर उसका पूरा साथ देते हैं और उनकी आईडी ब्लॉक भी करवा देते हैं, फुल पेमेंट भी निकलवा देते हैं, पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर जो अपलाइन गाइड जो दिमाग ना लगाने की बात करते हैं, नहीं लोग सुनते हैं। आप लिस्ट पर काम करके देखिए एक बार, मेरे कहने जो नए लोग आए हैं, जैसे सर लोग गाइड कर रहे हैं, लिस्ट पर काम कीजिए। हमारी लिस्ट पर काम करने के अवार्ड एंड रिवार्ड मिले थे हमें, जो किसी ने शायद अभी मैसेज नहीं बोला, मैं अपना बताना चाहती हूँ, मैंने फोटो खींची हुई है, मैं ग्रुप में थोड़े दिन पहले डीटीसी में उसमें डालने लगी थी, मैंने सर की परमिशन के बगैर मैं कोई कदम भी नहीं उठाती, सब जो कह रहे थे डन। फिर मैंने कहा मैं डालूंगी, सबको दिखाऊंगी, अवार्ड एंड रिवार्ड के सिक्के इतने इतने बड़े हैं, 50-50 ग्राम के 4 सिक्के मिले हुए हमें। मेरे बेटे ने कैलकुलेशन लगाई, क्या होता है वो देखता कितने के होंगे, उसने देखा 56,000 के हमारे सिक्के बन रहे थे, तो कह रहा था मम्मा आपने तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट की है। मैंने कहा ये 56,000 की बात नहीं है, अवार्ड है रिवार्ड। अब मैं देखती हूँ वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चीज ले नहीं पा रहे हैं, आप काम कीजिए, आप अवार्ड एंड रिवार्ड लेकर देखिए। 80,000 के हो गए, 80,000 ये अवार्ड एंड रिवॉर्ड कैटेगरी में है। अगर जो लोग नए जुड़े, मैं जूम पे भी बात करना चाहता हूं और बाकी लोगों भी, जो लोग नए जुड़े हैं, आपके पास एक समय सीमा देती है कंपनी, इतने समय में अगर डीटीसी रैंक लेंगे तो आपको ये चांदी का सिक्का मिलेगा। इतने समय में मतलब एक मिले सी 3 सानू इकट्ठे मिले हैं जी, वो बड़ी वधिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ पैकिंग ही बड़ी शानदार है। तो वो रिवॉर्ड एंड रिवॉर्ड अपनी अपलाइन के साथ बैठ के पूछिए कि अगर मैं ये लेना चाहूँ जी। मैंने उस दिन फोटो खींची, मैंने ग्रुप में डालूंगी, दिखाऊंगी, लोगों को चीज का पता ही नहीं है, कर ही नहीं है लोग इस चीज पे, सिर्फ एक लिस्ट पे काम करने की क्लास बनाया सी। अभी दलजीत मैडम की टीम में सोहन जी ने अचीव किया। हाँ, अगर हमने उनके विक्की सर की बात मानकर हमने ये अचीवमेंट किया, आज मैं बोल पा रही हूँ ना आप लोगों के सामने। अभी भी लोग अपने दिमाग में लगाइए कि लिस्ट नहीं है, लिस्ट बनी होती है, उसको खुद भी देखते हैं इसमें नाम किन के लिखे हुए हैं जी। हमने जो सर ने बोला वो प्लान किए, पहले दिन अपनी सेल थी, नेक्स्ट डे 1.5 लाख रुपया मैंने उत्तराखंड से, कोई यूपी से, कोई कहीं से मैंने मंगाकर ट्राइपल पूरे करके, इसी वजह से हम अपने होट में, अपने जो बहन भाई हैं जिससे हम बात करते हुए घबराते हैं कि हमने नहीं बात करनी है, क्योंकि वो नहीं करेंगे वो बड़े। और जिन लोगों की मैंने आइडिया लगाई थी उनका कल मैं उनकी प्रोफाइल दिखाऊं, सब लोग जानते हैं, आसपास कहीं घर नहीं मिलेगा उनको, इतने रिच लोग हैं। तो मैडम हमने सबकी आइडिया मंगवाकर ट्राइपल लगवाए पूरे। बड़े ध्यान से सुनना, मैडम ने क्लियरली क्या बोला। मैडम ने बोला मेरे पास 1750 की लिस्ट इस समय है, लेकिन उस समय कितनी थी, 500-550 की, राइट। सबसे पहले किसको ज्वाइन करवाया मैडम ने, अपने खास को, भाइयों को, भाई को, बहन को, पापा को, जो बहुत खास है, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसी वजह से ये अवार्ड एंड रिवॉर्ड मैंने जल्दी से अचीव किया, बहुत जल्दी अचीव किया, और वो बड़ी जल्दी। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे उस दिन हुई जब फर्स्ट आरटीपी आई, हम टीटीसी होकर फर्स्ट आरटीपी पर गए थे, 2 महीने से प्लस ही हुआ था हमारा टाइम। तो लोग जो शिव गौतम सर भाग कर आए हमारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए, AR मोहते सर आए, तो अच्छा लगा, मैंने ये लोग कौन है, अब जाकर समझ में आ रहा हमने बड़ा अच्छा काम किया, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं टीम को। नहीं, मैं खुद कह रही हूँ, खुद टीम को गाइड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उनको वो लिस्ट खोलकर देखना चाहते हैं कि हमने लिस्ट क्या बनाई थी, सिर्फ उसी वजह से अचीवमेंट कर पाए हैं। तो वो सभी से कहते हैं जो नए लोग आए हैं आपके लिए ये वर्डिंग तो बड़ी गोल्डन
वर्ड होंगे अगर आप इस पर काम करेंगे तो आप अचीवमेंट भी करेंगे, बड़ी जल्दी आपका रैंक भी अचीव होंगे। वो एग्जाम्पल मैं हूँ आपके सामने। और सही बात है, मैं अपनी कभी भी टीम में डुप्लीकेट नहीं कर पाई हूँ ये चीज, क्योंकि लोग अपने दिमाग से चलते हैं। थैंक यू सर। तालियां बजा दीजिए। ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 6,30,000 ਰੁਪਇਆ। ਵੀ ਤਿੰਨ ਆਈਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਆਈਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮੱਤ ਪਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਜਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿੱਕੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ 2-3 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਦੇ ਦੇ, ਕੰਮ ਹੀ भैड़े ने भी मैं नहीं मिलता करके दे दिया। और सबसे बड़ी बात एक और कहूंगी, शायद आप लोगों को फील हो, मैंने कभी ना स्टार्टिंग में विक्की सर को पता, हमने आइडिया खोल कर नहीं देखी ये बंदा मेरे नीचे आया या नहीं आया, ये टीम में हो रहा है, बस ये देखने में लग जाती है ये प्लान आज हो रहा है, ये बंदा मेरे नीचे आया कि नहीं आया। हमने कभी आईडी खोलकर देखी नहीं, सिर्फ अचीवमेंट होती चली गई। कभी 42,000 बना, कभी 1.5 लाख बन रहा है, कभी 2,45,000 हमारी बनी इनकम। सबके पास सारे फोटो दिखाते भी होंगे टीम में शायद। तो कभी खोलकर दिमाग में कभी आईडी खोलने में लगाया ही नहीं, पहले काम करने में आईडी खोल के देखो। अपने ते विश्वास रखियो, अपने जे आप जब डायमंड फंड के अपन भी नाल ले के ना इनका। तालियां बजा दीजिए एक बार जबरदस्त सब लोगों के लिए। खुद भी खोले अपनी आईडी और टीम की भी खोल कर देखे, क्योंकि इनकम बना रही है तो बाद में। पर वो उस वक्त हमने ये चीजें में दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ काम की तरफ ध्यान दिया, सिर्फ लिस्ट पर काम किया। इसी वजह से हमारी अचीवमेंट है। जो रिकॉर्ड आप सभी भी तोड़ सकते हैं, तोड़ा नहीं किसी ने भी। इन्हां दा ना खिस्सा फाड़ लियो अपना इन्हां दा तोड़िए। मैडम मैडम ने ओपनली चैलेंज किया है कि आप इस रिकॉर्ड को तोड़िए जो मैंने बनाया है। क्या आप लोगों में है वो दम? तोड़ेंगे इस रिकॉर्ड को? यस, मोस्ट वेलकम मुझे खुशी होगी जी, थैंक यू। सबसे ज्यादा खुशी है। आइए सर, आइए आप भी आइए। सर के लिए तालियां बजा दीजिए। कितनी लिस्ट है सर? 1200 लोगों के लिए। स्टार्टिंग में जब मैं आया तो उसमें मैं रेस्टोरेंट में काम करता था। पवन जी मेरे प्लान है, मैं टैक्स करता हूँ उनका किताब। और जब मेरे को दुकान पे आया कि मेरे प्लान दिलाते थे, जब मैं दुकान में बैठा था मैंने लिस्ट बनाई। स्टार्टिंग मेरे को कम से कम 150 बंदों ने मना किया इंडस्ट्री में आने से, जो मेरे खास थे 150 बंदों ने। तो मैंने फिर भी हौसला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने 750 बंदे की उस समय लिस्ट बनाई हुई थी। तो इसलिए उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं रोज डेली 3-4 प्रोस्पेक्टिव नहीं करता हूँ। आज मेरे साथ एक पर्सन ऐसे आए हैं जो मेरे को चाय पत्ती बेचने के लिए आए थे। पीछे बैठा एक गुरु जी अपना सर, मेरे अपना संदीप सर, ये मेरे को चाय पत्ती बेचने सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे को चाय पत्ती बेचने के लिए आए थे। लेकिन मैंने इनसे कनेक्ट लिया, इनका नंबर लिया, इनको ज्वाइनिंग करवाया। आज मेरे साथ ये काम करने के रेडी हो चुकी है। मेरी डेली नई प्रोस्पेक्टिंग है डेली। जब मैं इस इंडस्ट्री में डोला तो मैंने अपनी लिस्ट को ढूंढा, मैंने कंपास का काम किया। मैं डेली अब अभी भी 2-4 दिन से 5 दिन से मैं नई प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। डेली नए बंदों के चेहरे देखोगे आप डेली, क्योंकि मैं अब नई लिस्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि डेली मेरे नए प्रोस्पेक्टिव चलती रही है। इस इंडस्ट्री से आने से पहले मैं चाय का काम करता था, ठीक है। तो चाय की दुकान में सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे चाय की दुकान चलाता हूँ, क्योंकि मेरे काम में क्या चाहिए मेरे को लोग, जो कि मेरे पास चल के दुकान पर चाय पीने के लिए आ रहे हैं। 10,000 कमाने वाले भी आ रहे हैं, 50,000 कमाने वाले भी आ रहे हैं, 1 लाख वाले भी आ रहे हैं मेरे पास। लेकिन मैं उससे अपना प्रोडक्ट डेली सेल करता हूँ। आज ही पवन जी मेरे साथ थे, आते आते मैंने कम से कम 2,000 का माल बेच किया। अभी एक प्रेसमैन था जिसको प्रेस में कपड़े प्रेस करता हूँ, ठीक है। मैं दुकान पर डेली प्रोडक्ट सेल करता हूँ, डेली 1,500-2,000 का प्रोडक्ट डेली सेल करता हूँ। तालियां जोश के लिए, जमीन के लिए। आपकी शानदार अपलाइन सुमित शर्मा जी। ये जुनून लाते कहां से हो सर? ये जोश आता कहां से है? जैसे आप बोल रहे हो, ये जोश मेरे को लगता है अपने सपनों का जोश है। आज तक
कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो मैंने छोड़ा हो, पिछले में तो काफी आपको स्वागत है, जी। लेकिन मैंने आप मेरे लोगों ने सूरज जी को बताया मैं विवाद था पूछ रहा, लेकिन फिर भी मैंने तो मीटिंग नहीं छोड़ा, फिर भी मीटिंग नहीं छोड़ा। तो मेरी एक बार लेकिन मेरा फिर मेरा टीम के समय जितनी मैंने मेरे पास लिस्ट थी तो दोबारा टीम खड़ी करी। सही है कि नहीं? क्या आपके पास है ऐसे जुनून? आपके पास रीजन है ऐसे? हाँ, लिस्ट बनाते रहिए सर, लिस्ट बनाइए। और फिर उसमें से सिलेक्शन पे बात हो रही थी हमारी। ये देखिए, जैसे एक नींव मजबूत रहेगी तो सुंदर घर उसके ऊपर बन पाएगा और टिक पाएगा। क्या हो पाएगा? तो आप भी सिलेक्शन अपनी अपलाइन के साथ बैठ के करिएगा। सही है? तो पहला पॉइंट क्या करना है यहाँ पे? लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट। जब सब बोलेंगे मैं तभी आगे बढ़ूंगा। लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट बना के अपलाइन के साथ बैठ के क्या करना है? सिलेक्शन। और सिलेक्शन में जो लोग चुन के अपलाइन आपके हाथ में देंगे उनसे बात करनी है। क्या करनी है? बात करने से बात बनेगी। लिस्ट बना ली, सिलेक्शन कर ली, अपलाइन ने बोल दिया कि इनसे बात कर लो, आपने बात नहीं की, आपने बात उनसे कोई और बात करेगा, प्लान देगा, एंट्री उठाएगा और उसको जीटीएस में लेके बिठाएगा, फिर उसको टीसी, एटीसी, एनटीसी बना के स्टेज पे खड़ा, और आपको क्या आएगा? इसलिए अगर लिस्ट बनाओ तो अपलाइन के साथ बैठ के सिलेक्शन करो, और सिलेक्शन करके मान लो अपलाइन ने आपके 300 की लिस्ट में से 30 बंदे सिलेक्ट करके आपको दे दिए, तो उन 30 लोगों से क्या करनी है? क्या करनी है? बात करनी है। क्योंकि बात करने से बात, क्या बात करनी है, उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, राइट, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। बात करने को, किसी से फोन पे बात करना है, किसी को मिलके बात करना है, यही दो तरीके होंगे। किसी को फोन पे तैयार करोगे, किसी को मिलके तैयार करोगे। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब प्लान देना नहीं है। लिख लीजिए डायरी में, यहीं पे गड़बड़ होती है, इसीलिए लोग आपका फोन नहीं उठाते, इसीलिए लोग आपको मना कर देते हैं फोन पे, इसीलिए लोग समय नहीं देते आपको, क्योंकि आप फोन पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब प्लान देना, लेकिन आप प्लान दे रहे हो। क्या कह रहे हो? भाई बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली मैंने, बस उसमें 10,000 ही देना है, एक बार 11,000 ही देना है। 3 आईडी लगाएगा तो बस 30,000 ही देना है एक बार, फिर बस 2 बंदे जोड़ने अपन। बजी में मैं तेनू जोड़, तेरे ਨਾਲ ਗੱਲ करके, तेरे से बात करके तेरे को जोड़ रही हूं, वैसे तूने आगे 2 जोड़ दे, फिर उसने जोड़ने हैं, फिर उसने जोड़ने हैं, फिर करोड़पति। और वो आगे से क्या बोलता है फिर? पहले तू बन जा, पहले। अब समझ में आया लोग आपको क्यों टाइम नहीं दे रहे? मैं आपको बताऊंगा। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब बात करना, और बात करके समय फिक्स करना। क्या करना? जूम पे भी सुन लीजिए मेरे भाई बहन, प्रोस्पेक्टिंग करने का मतलब फोन पे या मिलके पहले दिन प्लान नहीं देना है। मुट्ठी क्या रहनी चाहिए? मुट्ठी क्या रहनी चाहिए? तो क्या बात करें कि सामने वाला समय दे? कितने लोग ये जानना चाहते हैं? और कितने लोग हैं जिनको पता है कि क्या बात करनी है? कुछ ही लोगों को। सिंपल सी बात है, मैं 2-3 आपको एग्जांपल दे देता हूं, आपको जो एग्जांपल समझ में आए उसको पकड़ लो, ठीक है? आप जिसमें आपको आसानी लगे। मान लीजिए मैंने फोन मिलाया, हेलो, हाँ रमेश क्या हाल? बढ़िया। उधर से क्या बोलेगा? बढ़िया। और कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। घर परिवार? बढ़िया। बीवी बच्चे? बढ़िया। और नौकरी कैसे चल रही है भाई? ठीक चल रही है या ठीक नहीं चल रही है? कुछ तो बोलेगा ना। अच्छा, अगर ठीक चल रही है तो बोलो बहुत बढ़िया, ठीक नहीं चल रही है तो बोलो कोई बात नहीं यार, ईश्वर हमारे साथ है, अच्छा होगा। ऐसे बात कर सकते हैं ना? पहले संस्कार की बातें जो है,
पहले फोन करके क्या पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं, सही है कि नहीं? लेकिन माई लाइफ स्टाइल में आने के बाद हम फोन मिला के सीधा क्या करते हैं, हेलो रमेश 10,000 रेडी रख। सही है कि नहीं? गलती यहीं पे होती है। तो आपने पहले फोन पे जैसे नॉर्मल बात करते थे, हाँ सर नहीं बोलना। रमेश को पहले क्या बोलते थे, रामू, क्या बोलते थे? अब अचानक से आपने फोन किया, हेलो सर कैसे हैं आप? ऐसे नहीं करना। पहले रामू बोलते थे तो अभी भी क्या बोलना है, और रामू क्या हाल चाल, बढ़िया, और घर परिवार बढ़िया, बीवी बच्चे बढ़िया, कामकाज नौकरी कैसे चल रही है, दुकान कैसे चल रही है, बढ़िया, ओके ग्रेट। अभी ये नहीं पूछेगा मैंने फोन क्यों किया, हेलो, ये नहीं पूछेगा मैंने फोन क्यों किया रमेश या रामू, वो पूछेगा ना किस लिए। ऐसा है तेरे भाई ने कुछ नया कारोबार शुरू किया है, तेरे भाई ने कुछ नया काम शुरू किया है, और तेरे एरिया से मुझे 8-10 लोग चाहिए। मान लो वो पर्टिकुलर किसी एक एरिया में रहता है, एरिया का नाम बताओ कोई भी। मॉडल टाउन। मॉडल टाउन। तो आपने क्या बोलना है, रमेश देख मॉडल टाउन एरिया से मुझे 10 लोग चाहिए कम से कम, वो एरिया पूरा संभालने के लिए पार्ट टाइम में। किसमें? मैं देख रहा था कि सबसे समझदार मेरा दोस्त कौन सा है, सबसे अच्छा दोस्त, ईमानदार दोस्त कौन सा है, तो तेरा नाम आया मेरे जुबान पे, इसलिए तेरे को फोन मिलाया। क्या तू मेरे साथ मिलके पार्ट टाइम में कुछ करने के लिए इंटरेस्टेड है? सीधा पूछो ना, क्या बोलेगा? अच्छा ठीक है, काम क्या है फोन पे मत पूछना, करना क्या है फोन पे मत पूछना, समय फिक्स करते हैं, शाम को बैठते हैं, मेरे घर बैठेगा कि तेरे घर बैठे, बता क्या बोलेगा? आ जाओ मेरे घर आ जाओ, या मैं तेरे घर आता हूं, ठीक है, बैठ के बात करते हैं, चाय पीते हैं और बात करते हैं, क्लोज। टाइम देगा कि नहीं देगा? देगा ना? तो ऐसे बात कर सकते हो आप। या मान लो लेडीज से बात करनी है, हेलो सुनीता, हाँ जी दीदी कैसे हो, ठीक हो, ओके, घर परिवार बच्चे नौकरी कैसे चल रही है, अगर जॉब करती है तो, अगर हाउस वाइफ है, और हस्बैंड का जॉब कैसे चल रहा है, हस्बैंड की दुकान कैसे चल रही है, सही है ना? अगर तो उसने बोल दिया अभी तो यार ठीक नहीं चल रहा है, अच्छा ठीक नहीं चल रहा है, फिर तो बढ़िया है, मैंने फोन तेरे को इसीलिए मिलाया है, मैंने कुछ स्टार्ट किया है नया, और तेरे एरिया से मुझे 8 से 10 लोग चाहिए कम से कम पूरा एरिया संभालने के लिए, काम इतना बढ़िया है, पैसा इतना है उसमें, और मैं देख रहा था उस एरिया में मेरा सबसे खास दोस्त कौन सा है, मेरे खास रिश्तेदार कौन सा है, तो दीदी आपका नाम मेरे दिमाग में था इसलिए आपको फोन किया। अब फोन पे मत पूछना काम क्या है, अब फोन पे मत पूछना काम क्या है, बैठ के बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, पैसा बहुत है। हल्का सा हिंट देता हूं, भारत सरकार की महिला रोजगार योजना में से सबसे बेस्ट हमारे पास आया है, हेलो, भारत सरकार की महिला रोजगार में से सबसे बेस्ट रोजगार योजना मेरे हाथ में लगी है, बैठ के डिस्कस करते हैं। आप बताओ, हाँ लेडीज से बात कर रहे हो तो ये जरूर पूछना है, वहां पे नहीं बोलना मेरे घर आओगे या आपके घर आओ, लेडीज है उनके घर जाओ, अपने घर पे, या बुलाना है तो विद फैमिली, उनके हस्बैंड के साथ बुलाओ, उनके घर पे जाना है तो उनसे पूछो हस्बैंड कितने बजे आते हैं, हेलो, तो जब वो टाइम दे तब अपने सीनियर को साथ लेके जाओ, सही है कि नहीं? आप सीधा बात कर सकते हो, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट है, क्या बोल सकते हो? मैटर आपका यही रहना चाहिए, हेलो, और सुरेश जी कैसे, और दुकान कैसे चल रही है, बढ़िया, और पापा और सॉरी फैमिली ठीक है, ओके, हेल्थ वगैरह ओके, राइट। अब पूछेगा नहीं सुनील भाई फोन क्यों किया, इसलिए किया है क्योंकि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा है स्किल इंडिया का। किसका? अब फोन पे मत पूछना सारी डिटेल, मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बैठ कर डिस्कस करेंगे। मैंने हल्का सा खाली पूछना था, क्या आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ काम करने के लिए, क्योंकि आपके एरिया से मेरे को 8 से 10 लोग चाहिए, आपके एरिया से मेरे को 8 से 10 लोग चाहिए, और सबसे पहले अगर किसी का नाम आया तो भाई तेरा आया मेरे दिमाग में, मैंने सोचा भाई से पहले बात करूं, करना है तो बताओ नहीं तो मैं नेक्स्ट को फोन करूं। थोड़ा अपना एक एटीट्यूड, एक बॉडी लैंग्वेज आपका ऐसा रहना चाहिए ना कि कुछ दे रहे हो वाकई। हेलो, आप कैसे करते हो? सुबह से 4 लोग मना करती है, तू तो हाँ करते यार। आपने जब बात करनी है तो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर ये वाला नहीं होना चाहिए,
आप उसको हफ्ते का 2,10,000 कमाने का मौका देने वाले हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहना चाहिए? कहना बुरा एंड बढ़िया जबरदस्त वाला है कि नहीं? जब आप किसी को कुछ देते हो तो आपका एटीट्यूड कैसा रहता है? बताइए कैसा रहता है? और जब किसी से लेते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपके है कि मैं उससे 10,000 लेने जा रहा हूं, मैं उसकी आईडी लेने जा रहा हूं, मैं उससे 30,000 लेने जा रहा हूं। तभी आपको डर लगता है, तभी आपको शर्म आती है। जिस दिन आपको ये फील हुआ कि आप अपने उस दोस्त को दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने वाले हो, उसकी भी लाइफ बनेगी, आपकी भी बनेगी, उस दिन आपका पोस्टर हाई रहेगा। अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में बोल सकते हैं? अभी एक सबमिट हुआ था हमारा, किसको पता है? दिल्ली के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उधर आए थे। पूरी देखिए, अगर कोई नरेंद्र मोदी साहब को लाइक करता है तब भी ठीक, नहीं करता है तब भी ठीक, क्योंकि हम मोदी साहब के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम माइलेज के साथ कर रहे हैं। किसके साथ? वो तो मैं खाली आपको बता रहा हूं, मैं पार्टीबाजी कोई नहीं करता, पर मैं एक बात करता हूं, अगर इतने बड़े पैनल पे जो ग्लोबल समिट हो रहा है, पीछे एलिमेंट वेलनेस का आपको लोगो दिख रहा होगा, दिख रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पहली कंपनी पूरे भारतवर्ष में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हजारों कंपनियां है कि नहीं है? एक कंपनी को मौका मिला वहां जाके अपने आप को प्रेजेंट करने का ग्लोबली, वो है एमआई लाइफस्टाइल, और उसमें से एक नंबर 1 ब्रांड एलिमेंट। तो जब भी आप बात करें तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? कॉन्फिडेंस से बात कीजिए और टू कट बात कीजिए, जैसे मैंने अभी बताया, बात को घुमाइए मत ज्यादा। सही है कि नहीं? कई लोग फोन लगा लिए आधा घंटा तक, क्या होगा फिर स्टेज पे जाएंगे, फिर वो आके फूल चढ़ाएंगे, फिर माला होगा, मान सम्मान होगा, फिर तुझे भी लाखों आएंगे, फिर मुझे भी लाखों आएंगे। अरे क्यों कर रहे हो फोन पे यार? फोन पे आपका काम प्लान देना। अगर मिलके भी किसी को कर रहे हो, जल्दी आओ जल्दी आओ, आपको बता दूं आप ही के फायदा होगा। मान लीजिए मैं, वो तो मैंने बताया फोन पे, किस पे? मान लो मिलके करना है तो वहां पे आपको ज्यादा देर रुकना नहीं है बॉस, आपको यही प्रेजेंट करना है। बात बात थोड़ी देर बाद घड़ी देखकर, अरे टाइम हो रहा है, जाना है। हेलो, सही है कि नहीं? मिले। और सुनील भाई कैसे हो? बढ़िया। राइट। और ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और घर परिवार सब बढ़िया है? ऐसे ही चलना चाहिए यार, है ना? कितना आप मेहनती बन गए, मजा। अच्छा ऐसा है, तुरंत मुद्दे पे आओ ना यार। हेलो, मुद्दे पे आओ। अच्छा ऐसा सुनील भाई, वैसे तो मैंने कहीं जाना था, पर हल्का हल्का तेरे को बता के जा रहा हूँ। चलो, मैंने गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, मैंने गवर्नमेंट का एक स्किल इंडिया का। अब अभी मत पूछना क्या है, तो मेरे अंदर तो बड़ी मछली जाएगी, बताओ क्या है? सुनो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, अभी मत पूछना क्या है। पैसा बहुत है, तेरी एरिया से मैं 8-10 बंदे खड़े करने वाला हूँ। और मैं देख रहा था, इस एरिया में मेरा सबसे अच्छा दोस्त होता है सुनील भाई, सुनील। ऐसा है, शाम को बैठे सुनो, दोपहर में बैठे, पता है आप कब बैठे? बैठ के बात करेंगे। आप बोलो थोड़ा सा तो बताओ, बोलो कुछ थोड़ा सा तो बताओ सर। अभी आगे से क्या कह रहे हैं? सुनील भाई, काम इतना अच्छा है, पैसा इतना है, ऐसे खड़े खड़े तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बिजी हूँ अभी। मैंने निकलना है, मेरा कोई वेट कर रहा है। अरे पूरा बताऊंगा ना यार, बैठ के बात करेंगे यार। सही है। हेलो, देख रहे हैं आप क्या बोलते हैं? अच्छा थोड़ा सा बताओ। लाल शीशी, और लाल शीशी को खोलेगा तेरा लिवर ठीक हो जाएगा। गई भैंस पानी में से फिर बच जाएगी, वो भैंस खाई में गई, साली आएगी नहीं। सही है कि नहीं? तो ठीक है, अभी ये पूछ रहे हैं मेरे से, मान लो एक बार और बोलो। फिर बता दो थोड़ा सा। ऐसा है सुनील भाई, मैं पूरा बताऊंगा, एक्चुअली मेरा बंदा वेट कर रहा है यार आगे। प्रोजेक्ट इतना शानदार है ना, तुम मन ही नहीं कर पाएगा। बैठ के बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। ऐसे करके बात करो, अपनी वैल्यू तो दिखाओ। आप क्या दिखाते हो? दुनिया का सबसे बेला बंदा अगर कोई है
उसने पूछा, बैठ आराम से बात करते हैं चाय मंगा ले, हेलो, खाना भी मंगा ले, समोसे भी मंगा ले बैठ के। अब प्लान दे दिया वहां पे, क्या बोल दिया, बस कुछ नहीं, बस 2 ही बंदे लड़े हैं, उन्होंने अपने आप ही काम करना, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ बस आराम ਨਾਲ, कहीं आने ਆਪਾਂ ਨੂੰ। अच्छा बाकी ना तेनों मैं कल समझाऊंगा, सीनियर ना टाइम ले। अब आपने सारा तो बता ही दिया, अब सीनियर क्या समझाएगा आके। और पहली बात, अगले दिन वो आपका फोन ही नहीं उठाएगा, लिख के ले लो, हेलो हेलो, समझ बात, समझा पा रहा हूँ, राइट। तो ये गलतियां, जैसे शादी का निमंत्रण देने जाते हो, बस एक ही मैसेज, पहले तालियां बजा दीजिए मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर सर, वेलकम सर। जोरदार जोरदार, लुधियाना पंजाब की आन बान चांद मिस्टर वरुण मोनास्टर। सर ये दोनों पॉइंट अगले 10 मिनट में कवर करूं, 10 मिनट्स, आपकी परमिशन? मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है? 10 मिनट में क्लियर करूं या 5 मिनट और 15 मिनट ले लूं? इजाजत है? रूम वाले भाई साहब भी इजाजत है? नहीं इजाजत है कोई बात नहीं, आप उधर से बंद कर देना, सही है जी। आइए, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है अभी देख लिया। शादी का निमंत्रण देने जाते हैं तो वहां पे पूरा बता के आते हैं पहले दिन, शादी का जोड़ा किस कलर का होगा, हलवाई कौन सा किया है, मिठाई कौन सी की है, कितने प्रकार की है, चावल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पुलाव बन रहा है, क्या बताते हो? शादी में आइएगा, शादी में जरूर आइएगा, आपके बिना हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी और भी कार्ड बांटने हैं, ऐसी होता है, ऐसी होता है जी। तो आपका भी ऐसे ही पूरा क्यूरियोसिटी, पूरा एकदम जल्दी जल्दी में प्रोस्पेक्टिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग में कभी भी तो फोन पे बात कर रहे हो तब भी 2-3 मिनट 5 मिनट से ज्यादा बात है, और मिल रहे हैं तो समझ लो 1 मिनट में कल्पना है आपने वहां से अपना जो उसके दिमाग में डालना था कि मैं कुछ कर रहा हूं और तेरे एरिए से मेरे को तू चाहिए, वो बीज डाल के तुरंत क्या करना है। अच्छा मेरा यार आगे वेट बंदा कर रहा है यार, अरे यार मैं पक्का बताता अभी, लेकिन टाइम नहीं है, कोई वेट कर रहा है, बैठ नहीं है शाम को ना, हमने बैठ के बात करते हैं। हेलो, कर सकते हैं ऐसे, थोड़ी 3-4 बार करोगे आदत बन जाएगी। मुझे भी पहले डर लगता था, मुझे भी मेरा भी गला पहले सूखता था। एक बार तो सर ने ऐसे ही किया मेरे साथ, मैंने सर को स्टार्टिंग में जब नया आया था, सर एक बंदा है बहुत बढ़िया आपसे मिलवाना है, सर कहते ठीक है डन रख लो। मैं कहा वाह, सर ने पहली बार में टाइम दे दिया आज, वेरी गुड। 8 बजे का प्लान रात का, सर को मैं 2 बजे से ही, सर तैयार हो ना, हाँ यार तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, 5 बजे तैयार हूँ, 7 बजे सर फोन नहीं उठा रहे, मेरे को टेंशन हो गई थोड़ी, 7:30 स्विच ऑफ, मैं कहा मैं फंस गया, मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? सर का मीटर चालू था, क्योंकि सर अपना फोन बंद किए थे, सर की टीम में 250 लोग थे, कितने? सर का मीटर चालू था, बंद किसका हुआ? मेरा, सही है। दूसरे दिन सर से टाइम लिया, सर दूसरे दिन भी मना कर दिए, मैं कहीं बिजी हूं। तीसरे दिन, चौथे दिन, मैंने एक दिन देखा सर के भरोसे बैठूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। 5वें दिन मैंने सर को बोला, सर आपने बोला था मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप साथ खड़े नहीं हो, आप खड़े नहीं हो सर, आप प्लान पे, सर मैं बिजी हूं, इधर उधर उधर उधर, चला तू पक्का रख, आज मैं आया। तो उस दिन भी, रियल बात बता रहा हूं सर, उस दिन भी नहीं आए, और उस दिन मैंने अपनी थोड़ी जो ईश्वर ने यहाँ पे एक फिट किया है, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग, वो किस लिए दिया है? सोचने के लिए। तो मैंने उससे सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा, सर की बहुत बड़ी टीम है, मैं सिर्फ सर के भरोसे बैठूंगा तो शायद मैं वो तरक्की मैं खुद करूंगा। अगर सर आज नहीं भी आए, और हुआ वही 7, 7:30 बजते बजते, उस व्यक्ति को 8 बजे टाइम मिलता था तो वो 8 बजे टाइम दिया, सर ने मना कर दिया, मैं आज भी बिजी हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं सर, आज प्लान पर टीम वाला करेगा। और मेरा पहला प्लान था, मैं बताता हूँ, वो एंट्री नहीं आई, वो एंट्री, मेरा पहला प्लान था, मैंने लिफाफा लिया, उसमें प्लान बुक डाली, क्योंकि शुरू शुरू में नहीं पता होता है कि अच्छा बैग चाहिए, एक अच्छा वो, मतलब जैसे नया नया एक व्यक्ति करता है। मैंने लिफाफा लिया, प्लान बुक डाली, कॉपी डाली, पेन डाला,
ऑटो पकड़ा, गिल चौक है यहाँ पे, वहां पे एक मिठाई वाली दुकान है, उस मिठाई वाली दुकान पे बंदा काम करता था, उसका प्लान था। और मैं आया ऑटो से, किससे आया, और जब ऑटो से आया मेरे को पता मुझे वहां उतरना है, तो मैं थोड़ा पीछे उतर गया। कहाँ उतर गया, थोड़ा पीछे। और उसकी दुकान के आगे खड़ी थी एक सुंदर सी बाइक। क्या खड़ी थी, मैं कॉन्फिडेंसली गया उस बाइक पे, थोड़ा सा से बैठ गया। बता रहा हूं मां कसम, रियलिटी है बिल्कुल। सामने आया वो, मैं कहा भाई आ रो, उतरा, गया, उसको प्लान दिया, बंदा नहीं जुड़ा, और बाद में बदला बाइक उसी की थी। मैं मैं रंग जमाने के लिए सोचो मैंने क्या क्या किया यार। सही है, जाके प्लान दिया, एंट्री नहीं आई, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा इतना हो गया था कि अब मैं किसी को भी प्लान, वहां से हुई शुरुआत मेरी, वहां से हुई शुरुआत। फिर धीरे धीरे एक दो ज्वाइनिंग जब बंदा उठा लेता है तो कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है। एक वो दिन था, एक आज का दिन है, सबको प्लान के लिए नहीं बोला कभी भी, वो स्टार्टिंग के दिन से भैया। क्लब भी नहीं था, हेलो, क्लब रैंक भी नहीं था, मां कसम बोल रहा हूं, प्लान के लिए नहीं बोला सबको मैंने। बनना चाहते हैं प्रदीप मौर्य, क्या करना पड़ेगा। यस, वेरी गुड, नेक्स्ट सर। फिर क्लब भी बने। देखो क्लब बना फिर, नेक्स्ट सर, जल्दी जल्दी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आगे मिनट पीछे जाना, बैक कर दो। हाँ ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग कर ली, इनविटेशन दे दिया, फिर बाद में क्या करना है, प्लान शो करना है। पहले 4-5 प्लान अपने अपलाइन से करवाइए बॉस। कितने, छठा प्लान अपलाइन को बुलाइए, बैठाइए और खुद दीजिए, क्योंकि आपका अपलाइन हर बार प्लान देता रहेगा तो टांगे मजबूत किसकी होंगी, किसकी होंगी, तो तेज दौड़ेगा भी कौन, चेक खाएगा भी किसका, और आप चढ़ेंगे, आप दौड़ेंगे, आप उठक बैठक करेंगे, आप दौड़ लगाएंगे, तो ये मजबूत किसके होंगे, किसके होंगे। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। इतनी बात तो आपको पता है ना, आज नहीं तो कल लीडर बनना है, स्टेज पे आना है, तो मेरे को तो सामने आना ही पड़ेगा, पता है ना सर। तो अपलाइन से अभी से बोलिए, अपलाइन जी जहां जहां अब से मैं प्लान दूंगा, अब से मैं फॉलो करूंगा, आप साथ में रहिए, और थोड़े दिनों के बाद आपको शायद मेरे ही जैसा कोई और व्यक्ति खड़ा करना पड़े, क्योंकि मैं आपका वो व्यक्ति खड़ा हो चुका होगा। ऐसा बोलिए, प्लान दिखाइए, पहले 4-5 प्लान खुद, फिर उसके बाद कौन दिखाएगा, आप। क्यों, क्योंकि दीदी किसकी, हमारी, ऐसा है क्या, दीदी किसकी, बच्चे किसके, गाड़ी किसको चाहिए, घर किसको चाहिए, तो प्लान भी कौन देगा, यस, जय हो, मैं प्लान दूंगा। बाहर निकलते ही अपलाइन, चलना प्लान पे जाना है। एक लास्ट पॉइंट और बता दिए, बैक करना थोड़ा सा, बैक करना। हाँ, उसके बाद क्या आती है, सेल क्लोजिंग। सेल क्लोजिंग तब होगी जब आप आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे पैसा, विक्की सर क्या बोलते हैं, बोलिए, पैसा पैसा पैसा, नहीं हम नहीं मांगेंगे, हम नहीं मांगेंगे पैसा, क्योंकि हम टाटा बिरला से भी बड़े हैं। वो पैसा मांगते हैं, उनको शर्म आती होगी भैया, उनको शर्म नहीं आती होगी, मुझे तो आती है, मुझे तो, मेरे से मत बोलो सर कि मैं पैसा मांग लूंगा किसी से, आपा ऐसा कहे तो पैसे पोए नहीं मंगे, आपा कहे तो पैसे पोए, अपना एटीट्यूड है नहीं, बहुत शर्म आती है। अब आप बताओ, जिसने की शर्म, जो मान लो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोग बोल रहे हैं, जिसने की शर्म, सभी बोल दो, जिसने की शर्म, मैं सबके फेस देख रहा हूँ, जिसने की शर्म, किसने की शर्म, किसने की शर्म, मेरे फूटे नहीं थे, मैंने मांगे, मैं प्लान देके बोलता था पैसे, पैसा देगा तो आईडी लगेगी, पैसा नहीं देगा तो आईडी
और जब आईडी नहीं लगेगी तो उसके 2 4 10 लोग ज्वाइन, तो वो 10 से 100, तो मेरी मर्सिडीज उसकी भी, तो क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? डॉक्टर के पास गए, एमबीबीएस डॉक्टर, कितनी बड़ी रेपुटेशन होती है उसकी। आप सारा गए वहां पे, पहले वो क्या मांगता है? 500 रुपए जमा कराए, 1000 रुपए, उसको तो शर्म आती नहीं है भाई साहब। और हम एमबीबीएस से ले ली। एमबीबीएस भी तो ले रहे हैं ना अभी से। तो कहने का मतलब क्या है, हमें प्लान दिया तो क्या मांगना है? हमें शर्म नहीं करनी है यार, और बिल्कुल भी डरना नहीं है कि मैं इससे पैसे तो ले लूं, अगर इसका कल को कुछ ना बना तो। अरे आप मुझे ऐसे बोल रहे हो, मन में आपके क्या है? डर होता है। आप ये सोचना है, कल को वो प्रदीप मौर्य बना तो, कल को वो सुनील अग्रवाल जी बना तो, कल को वो वरुण मोहरा जी बना तो, कल को वो विक्की वर्मा जी बना तो उसकी भी लाइफ कट, आपकी भी लाइफ कट। सही है कि नहीं? तो फॉल सेल क्लोजिंग मतलब पैसा मांगना। मान लो बंदे ने मना कर दिया, आज नहीं कल, आपने पूरा जोर लगाना है, नहीं दिया, एंड में क्या बोलना है? अभी कितने हैं? क्या बोलना है? सर ने उस दिन मेरे से 2000 रुपए ना लिए होते, शायद मैं बिजनेस में नहीं आया होता। लोगों ने नेगेटिव इतना कर दिया था। सही है कि नहीं? वो पार्ट पेमेंट लेने की ताकत है। अगर पूरी पेमेंट देता है 30,000, ओके, 10,000 देता है, ओके। अगर मान लो उसने पार्ट पेमेंट, अपने मुंह से नहीं बोलना सर आप 500 रुपए दो, ये नहीं बोलना। हो सकता है वो 5,000 जेब में लेके बैठा है, कितने, और आप कितने मांग रहे हो? आपने ये बात कैसे बोलनी है? सर अभी आपके पास कितने? कोई बात नहीं, जितने भी हैं आप दो, मैं कुछ अरेंजमेंट सर से बोल के करता हूँ, आपका आईडी बुक करवाता हूँ। तो वो जितने भी बोले, तुरंत हाँ नहीं बोलनी। उसने बोला 5,000 है, दे दो सर। उसने बोला 2,000 है, दे दो सर। अरे नहीं, उसने बोला 2,000 है, ओके 2,000, चलो कोई बात नहीं, आप दीजिए सर, मैं कराता हूँ पेरेंट। हेलो, उसने बोला 2,000 है, आपने बोला हाँ दे दे। वो भी बोलेगा साला पैसे लेने के लिए बैठा था ये। नहीं समझ में आया सर? थोड़ा सा वहां पे अपना एटीट्यूड कैसा रखना है? बढ़िया रखना है। चलो कोई बात नहीं, मैं सर से बात करता हूँ, ले आइए सर। अभी श्री गणेश करते हैं, अभी स्टार्टिंग करते हैं। सही बात है कि नहीं? जितना भी दिया लो, और लेके पार्ट पेमेंट, तुरंत जाके क्या करना है? बाहर आइसक्रीम खानी है। क्या खानी है? मेरे को कंप्लेंट सुनने को मिली ऐसे, बड़े सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, जाके दूध का पैकेट लेके पहले खुद ही पी रहे हैं। वो 2,000, वो 500 रुपए वो उसने अपनी मेहनत से कमाए, अपनी आईडी पे लगाने के लिए दिए, और ईश्वर अल्लाह को, आपका अपलाइन आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, आपका ईश्वर आपके अल्लाह आपको देख रहे हैं। जैसी नीयत वैसी बरकत, आप ईमानदारी से आप ईमानदारी से उसकी आईडी पे लॉगिन कीजिए और उसका सामान उसको डिलीवर कीजिए। सही है कि नहीं? आप देखना, एक कदम आपका साथ चलेगा और 10 कदम ईश्वर आपके साथ चलेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, सेल क्लोजिंग में गाय दूध देती है क्या? गाय कभी दूध नहीं देती सर। उसने चारा खा लिया, उसका दूध रेडी भी हो गया, बाल्टी भी रख दी, जब तक आप दोएंगे नहीं, जब तक आप निकालेंगे नहीं, तब तक दूध बाल्टी में नहीं आएगा। इसी तरीके से बंदे को प्लान दे दिया, मतलब चारा खिला दिया, उसका दूध रेडी हो गया, मतलब उसका मन भी बन चुका है, लेकिन जब तक आप नहीं बोलेंगे पैसा दे, पैसा, तब तक पैसा बाल्टी में नहीं आएगा, मतलब उस आपकी आईडी में। क्लियर हो गया? तो ये क्या कर रही है? अगर वो पैसा, अगर वो दूध अच्छे से नहीं दे रही है तो उसका क्या बांध दिया? आपने भी उसका हाथ पांव सब पकड़ के अच्छे से उससे क्या निकालना है? आपने कभी बच्चे को टीका लगवाया है? उसके 7 इंजेक्शन लगते हैं ना, टाइम पे लगते हैं ना। बच्चे को जब टीका लगवाने चाहते बच्चा रोता है ना, टीका नहीं लगवाना चाहिए, इसका मतलब। आपका दोस्त भी पैसा मांग रहे हो तो दोस्त रो रहा है, रो रहा है कि नहीं? मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, बोलता है ना। तो आपको वहां दर्ज करना चाहिए क्या? बच्चे को नहीं पता है टीके की ताकत क्या है,
कल को उसको पोलियो नहीं होगा, सही है कि नहीं? इसी तरीके से आज आपके दोस्त को प्लान की ताकत का पता, आप लगाइए वो 10,000 का टीका, उसको कल को हफ्ते का 2,10,000 आएगा और वही आपको कल को यहाँ पे आपको थैंक्स करेगा, सही है? और ये एक फॉर्मूला है, सफलता के 5 पॉइंट है। जब भी अपनी अपलाइन को मिलवाएं, सुपरमैन बना के दिखाना है। क्या क्या दिखा के दिखाना है? अभी वरुण सर अभी आए, मैंने वेलकम किया सर का। क्या किया? अब मान लीजिए सर आए, सर अपना गेट खोलते आके बैठ जाते और मैं अपना ट्रेनिंग चालू रखता, वो कोई बात थी क्या? अगर आपके सीनियर आपके साथ प्लान देने जा रहे हैं, आपका फर्ज बनता है आप उनको, उनके रेपो, उनका रिस्पेक्ट का लेवल बना के रखिए, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो आपको आपके सपनों की मंजिल तक लेके जाएगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और जैसा आप करेंगे आपका गेस्ट भी वैसा करेगा। सही है कि नहीं? तो सीनियर का मतलब ये नहीं है कि कोई क्लब अचीवर आपके साथ जा रहा है, टीसी जा रहा है, एनटीसी जा रहा है, नहीं। जो आपके साथ प्लान देने जा रहा है, जो आपके साथ प्लान देने, सामने वाले को बोलो कि सर का टाइम बहुत कीमती है, सर बहुत मुश्किल से टाइम देते हैं। आज इस एरिया में सर का विजिट था तो मैंने बोला सर मेरे खास दोस्त हैं, उनसे मिलके जाइए। हेलो, वो ध्यान से सुनेगा। सही बात है कि नहीं? आप क्या करते हो यार? आप तो नहीं, आप तो अच्छे लोग हो, बाकी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं गलतियां? अपलाइन साथ में गया, सामने गेस्ट बैठा है, उसको गए मिलवा दिए, बैठा दिए, आपने ना तो अपलाइन के बारे में कुछ बताया ना कोई तारीफ की, वो भी बंदा बैठ के सोच रहा है कौन सा बंदा आके बैठा मेरे सामने, मैं इसकी बात क्यों सुनूं? सही बात है कि नहीं? आपको अपने दोस्त को बताना पड़ेगा आपके साथ जो सीनियर जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है। क्या है? क्या है? वैल्यू बतानी पड़ेगी, तभी वो ध्यान से सुनेगा। सही बात है कि नहीं? नेक्स्ट, सारा कर दो, सारा कर दो। एक और, ये क्या है? फॉर्म बनना। अच्छा, फॉर्म दिख नहीं रहा है। ओके, तो पहले आपने क्या कर दिया? एडिफिकेशन। अपनी अपलाइन को हमेशा क्या बना के दिखाना है? सुपरमैन। और फार्म भरिए। फार्म प्लान दिखाने के बाद क्या निकालोगे? और फार्म कौन खरीदेगा? अपलाइन। कौन खरीदेगा? आपको बिल्कुल खरीदने की जरूरत है। अगर आपको हफ्ते का 2,10,000 चाहिए, खरीदना पड़ेगा। और सबसे पहले प्लान कहां दिखाने हैं? अपने खास लोगों में। अगर आप इंतजार करोगे ना कि पहले मैं बार बार वाले फंसा लूं, पहले मैं बार बार वाले लोगों को जोड़ लूं, अपने खास तो बाद में ले आएंगे, आपके खास को कोई और ले जाएगा। आपके खास को कोई, तो अपना समय वेस्ट मत कीजिए बाहर बाहर वाले लोगों को प्लान दिखा के, पहले अपने खास लोगों को प्लान दिखाइए, वहां पर सेल्स आने की संभावना ज्यादा होती है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? नेक्स्ट, ओपन ऑन द एंडेड क्वेश्चन मत कीजिए। ओपन मतलब वो सवाल मत कीजिए प्लान देने के बाद जिसका जवाब आपको ना में आएगा। जैसे कुछ बातें लिख लीजिए, प्लान कैसा लगा। प्लान दिखाने के बाद हम क्या बोलते हैं? सर प्लान कैसा लगा, नहीं बोलना है सर आपने। कब कर रहे हो, नहीं बोलना है। आपने क्या बोलना है? सिर्फ 2 ही 3 बातें बोलनी है, वो लिख लीजिए। प्लान जैसे ही खत्म हुआ, सर आपको प्लान में सबसे अच्छा प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा। अगला बोलेगा नहीं वो जो नॉमिनी बताया वो अच्छा लगा, हाथ मिलाइए सर मुझे भी। फॉर्म निकालो, भरना शुरू करो। वो मना करेगा, अभी रुक जाओ, देखता हूं, सोचता हूं, वाइफ से पूछ लूं, मम्मी से पूछ लूं। यार ये तो तेरी डिटेल है, ये तो तेरी काम तो यार तभी शुरू होगा जब पैसा देगा। नॉर्मल सी डिटेल है। मनोज कुमार, अच्छा पिताजी का नाम, ऐसे करके फॉर्म भरो। इंतजार मत करो आपकी अपलाइन भरेगी। गाय किसकी है? अपलाइन दूध निकालेगा। अरे भावना को समझो भैया, गाय, गाय आपकी, आप उस गाय का दूध निकाल सकते हो क्योंकि आपकी गाय आपको जानती, वो आपको लात। अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाके उस गाय का दूध निकालेगा, क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? तो कृपा करके खुद ही फॉर्म भरिए, खुद ही पैसे मांगिए, क्योंकि गाय किसकी है? गाय किसकी है? ओके, बात पैसे मांगिए, हेजिटेशन मत करिए, हमारी पहले बात हो चुकी है। नेक्स्ट सर। हाँ, तो अभी हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है लुधियाना शहर के अंदर।
नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम का भी बाप। क्यों है? क्योंकि उस प्रोग्राम का नाम है, बोल दीजिए, अनस्टॉपेबल। क्यों अनस्टॉपेबल है? क्योंकि वो पहला प्रोग्राम ऐसा हो रहा है पूरे पंजाब, पूरे लुधियाना के अंदर, पूरे लुधियाना की धरती पे। उस दिन हम इतिहास रचने वाले हैं। क्या इतिहास लिखेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपने काम करते हुए सुना होगा कि मैंने तो बहुत कंपनियां देख ली, सुना होगा, मैंने तो बहुत कंपनियां करके देख ली, बहुत कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन लुधियाना शहर की धरती से पहली मर्सिडीज हमारे सुनील सर लेके आ रहे हैं। पहली मर्सिडीज नेटवर्क मार्केटिंग। जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां लुधियाना पंजाब में हैं, पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में से पहला लीडर, लाइट जलाइए सर। अच्छा रुकिए, अभी रुकिए। पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और माई लाइफ स्टाइल में हमारे ही लीडर ने वो रिकॉर्ड बनाया है मर्सिडीज लेने का। तो कैसा होना चाहिए? उस प्रोग्राम का तो पेश रहेगा ना, पूरा इंडिया उस लुधियाना के ऊपर नजरें गाड़ के बैठा है। उस दिन धमाका करेंगे लुधियाना शहर की धरती पे, तो कितने लोग उस लुधियाना के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे? भाई साहब, कितने नेगेटिव से नेगेटिव लोग हैं आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके दोस्तों में, उनसे डील कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? क्या कर लो? आइए सर, यहाँ पे जल्दी आइए। मान लो ये दुनिया मेरे पूरे मोहल्ले के सबसे नेगेटिव इंसान है और मुझे डेली टोकते हैं, डेली टोकते हैं, कितने चले की बनया, क्या बना, कंपनी भाग जाएगी। मान लो ये एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसे है नहीं, मानते हैं आप? हेलो, दिल पे तो नहीं लिया सर? तभी आरटीसी बने, तालियां बजा दीजिए। मान लीजिए ये मेरे को बहुत नेगेटिव करते हैं, मेरे फैमिली के बंदे हैं, मेरे मोहल्ले के बंदे हैं, कोई भी है, मैंने इनसे क्या बोलूं? संजीव जी, आप बंदे तो बढ़िया हो, पहले अपनी बात मनवानी है तो पहले तारीफ, चाहे कुछ भी करने का दिल करता हो आपका, लेकिन आपने क्या करनी है? संजीव जी, बंदे बढ़िया हो आप। अभी ऐसा है यार, आप भी डेली बोलते हो कंपनी भाग जाएगी, कंपनी काम नहीं चलेगा, ये बेकार कंपनी है। मैं मान जाऊंगा, मैं पक्का मान जाऊंगा। एक बार आप मेरे साथ 5 तारीख को चलिए, एक बार भाई बन के। अभी यार मैं भी तंग आ चुका हूं यार इन कंपनी उपड़े के चक्कर से यार। आप सही बोलते हो, आप सही बोलते हो। भाई बन के मेरे साथ 5 तारीख को चलिए। वहां से आने के बाद आप एक बार बोल देना काम खराब है, मैं छोड़ दूंगा। छोड़ना नहीं है, खाली डील करनी है। क्या करनी है? और जहां जहां मैंने ऐसी डील करी है, डील कामयाब हुई है। हेलो, वो आएगा मेरी छुड़वाने और जाएगा करके। सही बात है कि नहीं? डील कर लो ऐसे व्यक्ति से, फैमिली मेंबर है, फादर है आपके, मदर है आपके, ब्रदर है आपके, सिस्टर है आपके। ब्रदर, एक ही खून है, क्या है? बात तो तू यार सही बोलता है यार, बड़ा भाई है। मेरा मेरा नुकसान थोड़ी चाहेगा, मेरा ऐसा है भैया। मैं भी तंग आ चुका हूँ, 5 तारीख को मेरे साथ चलो। बस वहां से आके एक बार बोल देना काम नहीं, मैं छोड़ दूंगा। छोड़ना और ये डील कर लो, वो पक्का आएगा, पक्का आएगा। हेलो, तो ये तो थे जितने नेगेटिव बंदे। अब पॉजिटिव तरफ आ जाए, आपकी लिस्ट। एक व्यक्ति कम से कम 20-20 टिकटें लो ना यार। कितने की टिकट है सर? जी बैठिए प्लीज। कितने की टिकट है? कितने की? 250 की। 10 टिकटें ली, कितना हो गया? कितना हो गया? 2500। उसमें कितने गेस्ट आए? 10, जिसमें से कुछ आपके फैमिली मेंबर हो गए और कुछ आपके गेस्ट हो गए। ठीक है, आप 2500 रुपए इन्वेस्ट करने का दम रखो।
कम से कम 10 बोल रहा हूं, एक नया बंदा जो इधर बैठा है, 2500 रुपए डालने का दम रखो। उस 10 में से अगर 2 लोग भी हम पॉजिटिव कर पाए या 2 लोग भी अपना माइंड टर्न कर पाए, ऐसे 2500 नहीं, ऐसे 2-2 लाख रुपए के चेक आपके हफ्ते में आएंगे, मेरा वादा है आपसे। दुनिया का हर बड़ा इंसान, दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति पहले पैसा, हर बिजनेसमैन पैसा लगाता है फिर कमाता है। आप यहाँ पे मार्केट का बिजनेस उल्टा है। इस होटल वाले ने पहले 100 रुपए लगाया था, 250 रुपए, ये 2500 रुपए लगाया था पहले। कितना लगाया होगा? करोड़ों रुपए लगाया, तब जाके 5-5 हजार, 3-3 हजार, 2-2 हजार रुपए में हॉल बुक करते हैं। सही बात है कि नहीं? हेलो, ऐसा होता है कि नहीं? पहले करोड़ों फिर कमाई। यहाँ करोड़ों नहीं लगाने, यहाँ हजारों लगाने हैं। और तैयार है? मैं फिर मां कसम खा के बोल रहा हूँ यार, एक ही व्यक्ति है जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस दुनिया में, मेरी माँ है। अभी भी मैं गांव गया था, मेरी माँ ने मेरे को 20 रुपए दिए यार। आज भी उस दिन मैं गया, मैं संभाल के रखा हूँ। आते हुए मेरी माँ कहती, बेटवा इसको रखो। माँ को भी पता है 20 इन्वेस्ट करूंगी तो ये कल को 200 करोड़, 2 करोड़ इसी का बनाएगा। मेरी माँ को भी पता है, और आपकी माँ को भी तो पता होगा, आपके भी तो पिताजी को पता होगा। मतलब इस 20 रुपए की ताकत देखिए। ये प्यार, मेरे को बोले कुछ खा लेना, अब आप बताओ आज की डेट में इसका कुछ मिलेगा क्या? लेकिन वो क्या दिया उन्होंने पता है? हाँ, ये आशीर्वाद है। आप, ये आशीर्वाद दिया मेरी माँ ने मेरे को, 20 रुपए। पापा ने आते हुए 100 रुपए दिए। हेलो, बात समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? तो जब आपको पैसा देने की बारी आती है ना, पैसा लगाइए। मिडिल क्लास व्यक्ति इसीलिए कामयाब नहीं होता, वो कैलकुलेशन में फंस जाता है। किस में फंस जाता है? 30,000 ने पहले ले लिया, 30,000 पहले ले लिया, पता कोई जोड़ नहीं रहा, काम कोई हुआ नहीं, 2-3 हजार और बन के देता दे। हेलो, इस बार दिल की सुनना, दिमाग की नहीं। प्रदीप मौर्य आपको वादा करता है यार, आप इस सिर्फ 5 तारीख वाले प्रोग्राम को जो लुधियाना में हो रहा है, जो जूम पे भी सुन रहे हैं और जो नॉर्थ इंडिया से हैं, आ जाइए बस भर के, गाड़ी बुक करके, कुछ भी करके ये प्रोग्राम पे आ जाइएगा। मैं आपको बताता हूँ, आपके डायमंड आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे। आप जिसको लेकर आओगे वो आपका फैमिली मेंबर भी है ना, वो आपको सपोर्ट करेगा सारी जिंदगी आपको डायमंड बनने के लिए। और दोस्त रिश्तेदार लेके आओगे, वो आपकी टीम में डायमंड बनेगा। ये मेरा वादा है, वादा है, वादा है। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, पैसे, और कभी मैं सर के सामने रोया नहीं, कभी सर को मैंने ये बोला ही नहीं, सर पैसे नहीं है, सर टिकटों के लिए पैसे नहीं, कभी कभी मतलब कभी नहीं बोला। बताओ क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि बीवी किसकी, बच्चे किसके, गाड़ी किसने लेनी है, बंगला किसने बनाना है, हफ्ते का 2 लाख 10 किसको चाहिए? तो मेरे धंधे को खड़ा करने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो प्रदीप मौर्य को करना पड़ेगा, और आपके लिए आपको करना पड़ेगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल दोस्तों। हेलो, मैं सर प्रदीप सर ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਨੀਲ ਸਰ ਦਾ ਆਰਟੀਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, तो मैं फर्स्ट टाइम मनीष जी ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਕਈ ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। तो ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਟੀਸੀ ਖੜੇ ਨੇ। और एक का टाइम ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਰ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, तो ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਵਿਜੇਪੁਰੀ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਟੀਸੀ ਨੇ। तो ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਰ, और थैंक यू। एक्चुअली जिवें दादे शर्मा जी ना, मैं दादा उस दिन मैं एक मैरिज छड्ड के आया सीगा। ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ
ऑडिटोरियम में जिस ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हैगा उस ऑडिटोरियम में मेरी शुरुआत हुई सी उस दिन शर्मा जी ने राइजिंग स्टार का रैंक है ना रोहित शर्मा का राइजिंग स्टार होया सी। थैंक यू। आज की ट्रेनिंग के लिए कैसी क्लैपिंग होनी चाहिए सर पे? वरुण मगा सर जी क्या नमस्कार। आखिरी 5 मिनट है बस, ज्यादा झेलना नहीं पड़ेगा। आपको कितने लोग हैं जो पहली बार आए ट्रेनिंग प्रोग्राम, पहली बार अटेंड किया? अरे ग्रेट, आप सब लोगों के लिए तालियां हो जाए एक बार। ये चलिए, सबसे पहले मैं प्रदीप जी को बधाई दूंगा। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही नॉलेजेबल ट्रेनिंग सेशन आपको डिलीवर करने के लिए। कैसी तालियां होनी चाहिए प्रदीप? मतलब हमारे माइलस्टोन में सबसे अच्छी जब चीज पता क्या है, राइट? कोई भी ट्रेनर जो होते हैं वो बाहर से नहीं आते, पेड नहीं होते, हम उनको पैसे देकर नहीं बुलाया करते। वो लोग होते हैं जो आप बीती बताते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग में आपको वो सारी चीजें फील हुई होगी कि जो जो उन्होंने सिखाया आपको वो उनके साथ बीता है, राइट? और वहीं से उन्होंने सीखा है। तो ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची है, राइट? और ये स्टोरी सिर्फ उनकी नहीं है, ये हम सबकी स्टोरी। उनके साथ हो चुका है, कईयों के साथ ऐसा होने वाला है, और आप लोग लकी हैं कि होने से पहले उन्होंने आपको रास्ता दिखा दिया, राइट? एक बार प्रदीप जी के लिए तो दिल से तालियां हो जाए। और अच्छा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आप सबको मालूम है कल भी एक जूम मीटिंग हुआ और लुधियाना में एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट होने वाला है। इनफैक्ट अभी तक का सबसे बड़ा, सबसे स्पेशल इवेंट होने वाला है, दैट इज अनस्टॉपेबल। तो नाम से ही मालूम चलता है अनस्टॉपेबल मींस आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। जब तक मैं अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं रुकने वाला हूं नहीं, राइट और रॉन्ग? और इस प्रोग्राम का स्टार अट्रैक्शन क्या है? आपने देखा होगा इस बार जो टिकट डिजाइन किया है बहुत ही मार्वलस सा टिकट। आज तक कभी ऐसा टिकट डिजाइन हुआ नहीं है, डिजिटल सा है, राइट? और आपके लिए खुशखबरी बता दूं, बताऊं कि नहीं? पक्का बताऊं? इस प्रोग्राम के टिकट्स मेरे पास आ चुके हैं। आप चाहे तो अभी इसके बाद टिकट ले सकते हैं, एंट्री से रिवर्व ले सकते हैं, राइट? तो ये प्रोग्राम कई मायनों में बहुत खास होने वाला है, बिकॉज लुधियाना में बहुत बड़ी, इनफैक्ट पंजाब में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ब्रांड न्यू मर्सिडीज। आप सोचिए 70,000 की सैलरी से 70,000 की गाड़ी। और ये जीत सिर्फ अग्रवाल फैमिली की नहीं है, सुनील जी की नहीं है, ये जीत हम सब की, राइट? हम सब इस मन मिलकर इस प्रोग्राम में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम बनाएंगे, राइट? सो दैट कि अभी मर्सिडीज का कारवां शुरू हुआ है, इसके बाद हर साल एक दो मर्सिडीज आप लोगों में से आए। तैयार हैं? तैयार हैं? तो ये कोई जस्ट प्रोग्राम नहीं है, इट इज दी प्रोग्राम, इट इज वेरी स्पेशल प्रोग्राम, और ये हमारे घर का प्रोग्राम है, राइट? ये हमारे घर का प्रोग्राम है, तो इसमें सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यस, सबकी जिम्मेदारी होगी। तैयारियों की बात छोड़ दीजिए, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे कोर लीडर्स जो हैं, जो वर्किंग कमेटी है, वो तैयारियां कर रही है ऑलरेडी, 1 महीने पहले से कर रही है, राइट? आपको सिर्फ इतना करना है, आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने गेस्ट के साथ, अपनी टीम के साथ सही टाइम पर पहुंचना, इतना कर सकते हैं। yes. बाकी सारी चीजें हमारी वर्किंग कमेटी संभाल लेगी, राइट? आपको सिर्फ हॉल को भरना है। और यकीन मानिए, इस प्रोग्राम में सिर्फ लुधियाना नहीं है, मैं आपको, इस प्रोग्राम में दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, चंडीगढ़ से भी आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं, हिमाचल से भी आ रहे हैं, और लुधियाना के तो रहेंगे। तो अगर आप ये मौका चूक गए, लोकल बैठे हो, अगर आपने अपने गेस्ट इनवाइट नहीं किया, तो बाकी लोग तो बसेस भर के आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा लुधियाना का परिवार है, इनके सबसे ज्यादा लोग बैठे। आर यू रेडी? पक्का रेडी? कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ मर्सिडीज प्रोग्राम है, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। मर्सिडीज तो सेलिब्रेट होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं, राइट? जिनको बहुत बाजे गाजे के साथ सेलिब्रेट करने वाले, बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स की। बताऊं उसके बारे में? चलिए, सबसे पहले तो मर्सिडीज से तालियां हो जाए। और कौन लेने जा रहे हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, पर एक बार प्लीज रिकॉर्ड। And I'm very happy कि हमने से किसी एक आदमी ने फाइनली डिड इट, राइट? और ये एक शुरुआत है, इसके बाद ये कारवां आगे देखिएगा कहां तक जाता है, राइट? और सर ने सिर्फ मर्सिडीज नहीं लिया, आप सबको शायद मालूम हो या ना हो, मर्सिडीज आने से पहले
मर्सिडीज को पार्क करने के लिए एक स्पेशल सर ने प्लॉट भी लिया, प्रॉपर्टी भी लिया, उसके लिए भी तालियां हो रही हैं। तो यहाँ पर डबल डबल अचीवमेंट है, राइट। मैंने इसलिए बताया कि आप पार्टी जब मांगे तो दो पार्टी मांगे, राइट। चलिए नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो अभी तक आपने गुरु नानक भवन में बहुत सारे इवेंट्स देखे होंगे। ये इवेंट जो है वो नेहरू मैदान के अंदर में होने वाला है। पार्क प्लाजा होटल अगर आपने देखा होगा फिरोजपुर रोड पे, उसके बिल्कुल साथ में, राइट। कितने लोग हैं जिन्होंने कोई इवेंट वहां पर अटेंड किया? सिर्फ पुराने लोग हैं जिन्होंने अटेंड किया। मेजोरिटी लोगों ने अभी वो हॉल शायद देखा भी नहीं होगा। वो हॉल उससे भी बड़ा हॉल है, वो हॉल डबल ट्रिपल कैपेसिटी का है, बहुत ही जबरदस्त ऑरा है, बड़ा स्टेज है उसका, बहुत सारी सीट्स है वहां पर, और बहुत बड़ा हॉल है। मतलब आपको अटेंड करने में वाकई में मजा आएगा, राइट। बहुत कंफर्टेबल सीट्स है, और अच्छी बात है कि नया हॉल बना। इनविटेशन के लिए लोग फिरोजगंज मार्केट भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, फिरोजगंज मार्केट देखा है ना आपने? तो फिरोजगंज मार्केट बोल के भी आप किसी को बुला सकते हैं। फिरोजगंज मार्केट के बिल्कुल साथ में हो, राइट। तो दो लैंडमार्क्स, और हमारे महागुरु आशीष मैथ्यू सर डबल आईडी एमटीसी में प्रेजेंट होंगे। कितने लोग हैं जो सर को पर्सनली मिलेंगे? आशीष मैथ्यू सर का। ओके, बाकी लोगों के लिए मौका है उनके साथ फोटो खिंचवाने का। एनआर डायमंड एग्जीक्यूटिव, एक बार जबरदस्त टैलेंट मिस्टर जरूर के लिए। सैक्रिफाइसेस सिर्फ आपको नहीं कर रहे, सैक्रिफाइसेस सब लोग कर रहे हैं, राइट। 5 अप्रैल जो लोग क्रिश्चियंस हैं उनको मालूम है कि वो दिन क्या है। कोई क्रिश्चियन है हमारे बीच में? 5 अप्रैल क्या है सर? ईस्टर है। और ईस्टर माने जैसे मतलब दिवाली होती है, राइट, उसी तरीके से ईस्टर होता है। मतलब मोस्ट स्पेशल डे ऑफ बीइंग ए क्रिश्चियन, राइट। प्लीज हैव अ सीट। तो आप सोचिए हमारे दोनों अपलाइंस, राइट, उस दिन जब उनकी फैमिली को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो अपना ईस्टर मना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैरो सर केरला से ट्रेवल करके, राइट, यहाँ लुधियाना आ रहे हैं। तालियां हो सकती है उनके लिए। आशीष सर ईस्टर वाले दिन लुधियाना में, राइट। और ये सब इसलिए बिकॉज उन लोगों को आप लोगों की ग्रोथ चाहिए। क्या आप तैयार हैं? तो वो लोग जब अपना दिवाली जैसा दिन छोड़ के यहाँ पर आ सकते हैं, तो हम लोग अपने शहर में रह के तो हॉल में पहुंच सकते हैं परिवार के साथ। कमिटमेंट है? चलिए, वंडरफुल। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट, मलेशिया टूर अचीवर्स कितने हमारे बीच में? अरे बहुत सारे, तालियां हो जाए आप सबके लिए। कितने लोग हैं जिन्होंने किया नहीं, जो प्लान कर रहे हैं सबसे करने का भी? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, बाकी लोग? कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, कर लिया, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, इस हफ्ते कर लेंगे, बाकी लोग सोच रहे हैं। अच्छा, इस वीक की बात करेंगे। सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, राइट। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मुझे नहीं पता फॉरेन गए या नहीं गए, हो सकता है पहले भी गए हो, राइट। लेकिन टीम जेनेसिस फैमिली के साथ फॉरेन जाना मतलब एक अलग एक्सपीरियंस, राइट। मैं करीबन 10 बार फॉरेन टूर लगा कर आया हूँ, राइट। लेकिन मैं यकीन से ये बात बोल सकता हूँ, जितनी बार भी हम लोग गए हैं टीम जेनेसिस के साथ, दिल्ली से जितनी भी फ्लाइट उड़ेंगी वो सब हमारी होंगी, टीम जेनेसिस वालों की, राइट, सारी हमारी होंगी। उसके बाद वहां पर जब उतरेंगे तो आपको टूरिस्ट बस वहां पर कर रखी है हमने, वो आपको रिसीव करने आएगी, एयरपोर्ट से होटल तक लेकर जाएगी। वहां पर 2 3 4 होटल साथ में जो होंगे वो सब माइलस्टाइल वालों की, टीम जेनेसिस वालों की। उसके बाद 3 3 4 4 बसेस वहां से निकलेंगे, जहां पे हम घूमने जाएंगे, जिस भी स्पॉट में हम जाएंगे वहां पर करीबन 150 लोग आपको टीम जेनेसिस के मिलेंगे। तो आप इमेजिन करके देखिए, चाहे प्लेन की बात हो, चाहे होटल की बात हो, चाहे कहीं पर घूमने फिरने की बात हो, राइट। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं अभी? करीबन 60 70 80 लोग बैठे, राइट। और वो लुधियाना के ही ऑलमोस्ट। अब सोच कर देखिए, जब 150 लोग पैन इंडिया टीम जेनेसिस से होंगे तो क्या हुड़दंग मचाएंगे, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यस, पिछली बार हम लोग दुबई गए थे तो वो लोगों को आज तक भूला नहीं, क्यों विक्की, राइट। 270 लोग गए थे, राइट। तो ये एक मौका है आपके पास, राइट। अभी भी अगर आपने मलेशिया नहीं अचीव किया है तो ये फ्राइडे तक का टाइम है आपके पास, राइट। फिर से एक बार सोचिएगा कि कहीं मैं कोई ऐसा मौका छोड़ तो नहीं रहा जो मेरी जिंदगी भर की एक बहुत जबरदस्त मेमोरी बन सकती है। आई एम वेरी श्योर आप सब लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, राइट और सब लोग जाना चाहते हैं। आप कई महीनों से, कई सालों से सोच रहे होंगे कभी जाएंगे कभी जाएंगे कभी जाएंगे, बट मौका बना नहीं। माइलस्टाइल आपकी जिंदगी में आया ही इसलिए है क्योंकि आपका फॉरेन जाने का सपना पूरा करना है। ये एक मौका है आपके पास। करना क्या है? 1,25,000 का टारगेट है आपके पास, राइट। 75,000 रुपए के करीबन माल मिल जाएगा, बाकी आपको कैशबैक आ जाएगा। आप टोटल कैलकुलेशन लगा के देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट फ्री में पड़ रहा है। मैं आज भी किसी की काउंसलिंग कर रहा था, ऑलमोस्ट फ्री पड़ रहा है आपको, और फ्री में अगर आपको मलेशिया मिल रहा है, राइट, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? और सिर्फ मुद्दा मलेशिया नहीं है, एक बार अगर आपने लाइफ में मलेशिया अचीवर बन गए ना तो पूरी जिंदगी जिस भी मीटिंग में जाएंगे,
जिस भी प्लान पे बैठेंगे, जब भी शेयरिंग करने का मौका मिलेगा, आप वहां पर शेर की तरह दहाड़ के बोल सकते हैं कि मैं मलेशिया टूर अचीवर हूं। आपने मिलिट्री वालों को देखा, मिलिट्री वालों को देखा, उनके यहाँ पे बैचेस लगे होते हैं, मेडल्स लगे होते हैं, राइट। हमारे बिजनेस में भी पता कौन कामयाब होगा, जिसके यहाँ पर सबसे ज्यादा टैग लगे होंगे। अभी बहुत सारे अचीवर्स ने बताया मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास एक घर है, मैं फॉरेन होकर आया, ये है, उसी से सेल आ रहा है ना, राइट और रॉन्ग। तो आप सोच कर देखिए, जब आप अपने अपलाइन को लेकर जाते हैं साथ में, तो सेल मैच्योर हो जाता है। आपसे क्यों नहीं हो रहा, जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त देखना चाहता है कि आपने क्या किया है। एक बार मलेशिया अचीव कर लीजिए, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मलेशिया अचीव करके जाना दूर की बात है, वो तो मई में जाएंगे। आप जाना दूर की बात है, आप मलेशिया अचीव करके आपकी फोटो आएगी ना, वो स्टेटस पे लगा लीजिएगा, 10 लोग तो आपको पूछ लेंगे भैया कैसे हुआ है, खुद इंक्वायरी जनरेट हो जाएगी। तैयार है? यस। दिस इज द लास्ट चांस, मैं आपको बता रहा हूँ, इस फ्राइडे ये लास्ट चांस है, लास्ट मौका है, आप अपने करियर में एक टेक ऑफ ले सकते हैं अगर आप मलेशिया विन करेंगे। तैयार है? पक्का तैयार है? तो जिन्होंने नहीं किया, आज अपने अपलाइन के साथ बैठिए और रिकैलकुलेट कीजिए कि मैं मलेशिया विन करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स हो सकते। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो हमारे यहाँ पर एक एमआई वॉरियर, एमआई ईगल, एमआई लायन कैटेगरी भी है। इस पूरे महीने में अगर कोई आदमी 2500 की इनकम बनाता है अपनी टॉप आईडी पे, बाकी आईडीज की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप आईडी पे, तो वो कहलाएगा वॉरियर। देन उसके बाद एमआई ईगल मतलब 5000 रुपए की इनकम, टोटल इनकम 5000, एंड एमआई लायन मतलब 10,000। आप सोच कर देखिएगा, अगर आप बोलते हैं कि आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, अगर आपने महीने में 10,000 भी नहीं कमाया तो काम कर रहे हैं? सच में अपने आप से पूछ कर देखिए। चलिए 10,000 में नए लोगों के लिए बोलता हूँ ज्यादा हो सकता है, 5,000 तो कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? इतना भी कमा लेंगे ना तो हम रेडी हैं आपको अप्रैल 5 के प्रोग्राम में सेलिब्रेट करने के लिए इन फ्रंट ऑफ आवर डायमंड्स। तो अभी से टारगेट ले लीजिएगा, अभी से मलेशिया के लिए 1 हफ्ता बाकी है, यानी कि ये फ्राइडे। अगर आपको ये टारगेट पूरा करना है तो आपके लिए अभी 2 हफ्ते बाकी है, राइट सर? 2 हफ्ते बाकी, राइट, ये फ्राइडे और नेक्स्ट फ्राइडे। और भी हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे मलेशिया टूर अचीवर्स का बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है, बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन होने वाला है, मतलब समझ लो इक्वल टू मर्सिडीज होगा ही, उससे कम नहीं होगा। इसके बाद लॉयल्टी बोनस अचीवर्स, अगर आप क्लब बनते हैं, ब्रांड न्यू क्लब की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप ब्रांड न्यू क्लब लेवल अचीव करते हैं या उससे ऊपर टीसी, एटीसी कोई भी रैंक अचीव करते हैं, राइट, तो वो भी सारा सेलिब्रेशन होगा, वॉरियर ईगल लाइन होगा। और हाँ, डेफिनेटली अगर आप होम शॉपिंग प्लान कर रहे हैं, चाहे आपने एलिमेंट्स का ऑन एंड ऑन का किया है या एग्रीकल्चर के लिए किया है, आप देखिए हमने इस बार एक स्पेशल कैटेगरी डाला है 1 लाख प्लस एग्रो शॉपिंग, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर का सीजन शुरू हो रहा है, राइट। तो अगर आप होम शॉपिंग प्लान करते हैं, यानी कि 1 लाख या उससे ज्यादा का स्टॉक उठाते हैं, तो आपको उस कैटेगरी में भी एक सेलिब्रेट किया जाएगा, प्रॉपर सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, राइट। देन उसके बाद हाँ, कुछ ब्रांड न्यू कार मर्सिडीज तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इस 2-4 हफ्ते में और गाड़ियां नहीं आ सकती है ना। अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं कि मुझे अगले 2 महीने में, 3 महीने में फलाना रैंक करके लेना है, तो दिस इज द राइट टाइम। प्रोग्राम से पहले गाड़ी ले लीजिए, आपका फोटो भी होगा, आपका वीडियो भी बनेगा, आपके एंट्री का वीडियो भी बनेगा, आपको एक ऐसा वीडियो बना के देंगे, पूरी रिश्तेदारी में कहीं पर भी डाल देना, सेल भी सेल है। तो गाड़ी अगर प्लान कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम से पहले प्लान कर दीजिएगा, बिकॉज गाड़ी न्यू कार अचीवर्स के लिए हम लोग कुछ, मैंने पहले बताया, ये सिर्फ मर्सिडीज नहीं है, मर्सिडीज के साथ भी बहुत कुछ है, राइट। तो आपके हाथ में कि आपने एक ऑडियंस बन के बैठना इस प्रोग्राम में, या आप स्टेज पर एज एन अचीवर आना चाहते हैं, और अगर आप एज एन अचीवर आएंगे तो आपके साथ जितने भी लोग आएंगे, 20-25 गेस्ट जो आपके साथ आएंगे, उनको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, वो आपकी सेलिब्रेशन देखकर खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगे। तैयार हैं? 100% तैयार हैं? तो बहुत कुछ सेलिब्रेट होने वाला है। तो मलेशिया के लिए 1 हफ्ता बाकी है, ये सब अचीवर्स के लिए 2 हफ्ते बाकी हैं, और 2 कैटेगरीज हमने ऐसी रखी हैं, सीलिंग अचीवर, यानी कि हफ्ते का 2,10,000। तालियां हो सकती है एक बार। अगर दलजीत मैम हमारे बीच में है तो, दलजीत मैम हमारे बीच में है, एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए। मैम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, ये बहुत ही शानदार ऑलरेडी जबरदस्त सीलिंग अचीवर सेलिब्रेशन के लिए, थैंक यू मैम, कांग्रेचुलेशंस, राइट। तो आप भी अगर हफ्ते का 2,10,000 कमाकर इस प्रोग्राम में आते हैं, राइट, तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपको मिलेगा, आपकी जिंदगी का सबसे यादगार सेलिब्रेशन होगा। और अगर अपने रिस्पेक्टिव रैंक पर आप परफॉर्मेंस बोनस करके आते हैं, तो तब भी आपको बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मिलेगा। और इसकी डेट हमने बढ़ाकर रखी है, यानी कि बाकी अचीवमेंट्स के लिए सिर्फ 2 हफ्ते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बोनस और सीलिंग अचीवर के लिए हमने 3 हफ्ते रखे हुए, यानी कि 3 मार्च तक रहेगा। 3 मार्च तक अगर आप सीलिंग अचीव कर लेते हैं या परफॉर्मेंस बोनस अचीव कर लेते हैं,
तो आपको ग्रैंड से भी ग्रैंड सेलिब्रेशन मिलेगा। आर यू रेडी? पक्का रेडी? नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो एक चीज याद रखिएगा, ये प्रोग्राम जैसे मैंने बताया मल्टीपल स्टेट से बहुत सारे लीडर्स अपनी टीम्स को पुश कर रहे हैं, बिकॉज मर्सिडीज सेलिब्रेशन, मलेशिया अचीवर सेलिब्रेशन कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ा है, इसीलिए हमने हॉल भी बड़ा किया, राइट। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 800 to 1000 पीपल इन दिस, राइट, क्योंकि हमें लुधियाना का तो पता है कि कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन जो बाहर से टीम्स लीडर्स पुश कर रहे हैं ना, उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ग्रैंड इवेंट होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले पासेस, मैं स्पेशली आज पासेस क्यों लेकर आया, ये पासेस मुझे 3-4 दिन बाद मिलने थे, बट मैं करवा कर लेकर आया हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है डिमांड आना शुरू हो गया जरूर सर की तरफ से भी। तो मैं चाहता हूँ कि जितना टिकट पहले मेरी टीम में लग जाए लुधियाना में, उतना लग जाए, अदरवाइज तो फिर हमें दूसरों को भी ऑनर करना पड़ेगा। तो टिकट्स मेरे पास ऑलरेडी है, राइट। ऑलरेडी इस कल जूम मीटिंग में भी डिस्कस हो चुका है कि मिनिमम बोल रहा हूं मैं, जैसे प्रदीप सर ने भी बताया, मिनिमम कोई नया आदमी भी है ना, तो कम से कम 10 टिकट जरूर ले लीजिए मिनिमम, क्योंकि 2-3-4 टिकट तो आपके घर में हो जाएगा, मतलब आप, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, लाइक मतलब हो जाए, घर में हो जाएगा। कम से कम एटलीस्ट हर आदमी के 5-7 गेस्ट इस प्रोग्राम में होने चाहिए। और अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करते हैं तो 10 के 10 नहीं पहुंचेंगे, उसमें से 2-3 ऊपर नीचे होगा, बिकॉज मैं जानता हूँ, 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट काम लोगों को अप्रैल 5 को संडे को ही याद आएंगे, हम में से भी कुछ होंगे, है ना। तो कोई भी काम हो आपको एडवांस में बता दिया जा रहा है, राइट। टिकट्स पहले ले लीजिएगा, अपने लोगों को पहले से तैयार कर लीजिएगा, सो दैट कि आप ये मौका चूकने ना पाए। बिकॉज प्रदीप सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, जिसका नाम आप लिस्ट में नहीं लिखेंगे, जिसको आप इनवाइट नहीं करेंगे, आप मत कीजिएगा, बट आपको अप्रैल 5 के प्रोग्राम में नजर आएगा वो। और अगर वो किसी के साथ आया तो फिर आप अपने अपलाइन को कंप्लेंट मत कीजिए, कंप्लेंट नहीं सुनेंगे भी नहीं, तैयार है, वो रूल्स है कंपनी के, वो जिसके साथ आए उसी के साथ जुड़े, राइट। तो अगर अभी भी आपको बहुत कंफर्ट में थे कि चलो जैसे बाकी प्रोग्राम होते हैं तो एक और प्रोग्राम होने वाला है, मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अनदर प्रोग्राम, दिस इज नॉट जस्ट वन प्रोग्राम, दिस इज दी प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जिसने सुनील अग्रवाल जी को बनाया, एक प्रोग्राम जिसने वरुण मूंगा को बनाया, विक्की वर्मा को बनाया, प्रदीप जी को बनाया, गुरप्रीत जी को बनाया, सबको बनाया, राइट। हम भी किसी न किसी प्रोग्राम की देन, राइट। हम भी किसी प्रोग्राम में गए थे, हमें भी कोई बात वहां पर समझ में आई थी, हमारी फैमिली ने भी तब सपोर्ट करना शुरू किया था, हम भी अपने गेस्ट लेकर गए थे, वहीं से एक नई टीम की शुरुआत हुई थी, तभी आज यहाँ पर खड़े हैं। हो सकता है अप्रैल 5 का अनस्टॉपेबल प्रोग्राम आपकी लाइफ में वही प्रोग्राम हो जहां से आपकी एक नई शुरुआत हो। लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, बड़े सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे तो टीम ही नहीं है जी, तो मैं टिकट्स कहाँ लगाऊंगा? 3 गाड़ियां रहेंगी, मर्सिडीज और एक BMW और एक दूसरी BMW। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कि सर मेरे पास टीम नहीं, राइट। तो मुझे बताइए, अगर टीम नहीं है, बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइएगा, प्रोग्राम, ये अनस्टॉपेबल प्रोग्राम से बेटर ऑप्शन आपको कहाँ मिल सकता है? ना कोई प्लान दिखाना पड़ेगा, ना कोई अचीवमेंट दिखानी पड़ेगी, ना किसी को कन्विंस करना पड़ेगा, पैसा भी नहीं मांगना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने आप में इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोग्राम होगा, इतना एनर्जेटिक प्रोग्राम होगा कि आपको सिर्फ इतना मेहनत करना है कि अपने गेस्ट को लाकर बिठाना है, बाकी सब मूवी की तरह चलेगा और आपका डायमंड बन के बाहर निकलेगा। भाई 12 साल हो गए, मैंने कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई गली मोहल्ले वाला मैंने छोड़ा तो नहीं होगा, मैंने सबको प्लान दिया होगा, राइट। लेकिन मैं टिकट छुपा के लेके आया हूं, मैं अपने पर्सनल के लिए, टीम को छोड़ दीजिए तो ले दिए, मैं अपने पर्सनल के लिए 50 टिकट्स ले रहा हूँ, 50 टिकट्स। क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन लगाकर देखिए, मैंने 50 लोगों को इनवाइट किया, मान लो 10, 15, 20 नहीं आए, राइट, 30 आएंगे, 30 में से मान लो 15 ने नहीं किया, 15 करेंगे, 15 छोड़िए 10 करेंगे, 10 लोग जब करेंगे, राइट, तो वो इतना बड़ा प्रोग्राम देख कर आ रहे हैं कि वो 10 लोग आने वाले 1 साल में मुझे 10,000 लोगों की टीम दे देंगे। मैं इस तरीके से सोचता हूँ, क्योंकि हमारे बिजनेस में और कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं ना, हमारे बिजनेस में और कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, कोई फैक्ट्री लगानी, कोई सामान नहीं बनाना, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इवेंट प्रमोट करना आना चाहिए। और हमारे यहाँ बोला जाता है, एक इवेंट प्रमोट अगर आपने अच्छे से कर लिया, वो अगले 6 महीने के ग्राउंड वर्क के बराबर है। 6 महीने तक जब आप एक एक आदमी को 1-to-1 प्लान करेंगे ना, उसके बराबर है एक इवेंट प्रमोट, राइट। तो ये इसीलिए आपको बताया गया कि बाद में बताइएगा नहीं, सर हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया, बार बार लीडर्स आपको आके बता रहे हैं, राइट, बार बार चीजें समझा रहे हैं। तो आप इस डाउट में मत रहिएगा कि यार ये प्रोग्राम जस्ट एक नॉर्मल प्रोग्राम होगा, ये बहुत कमाल का प्रोग्राम होगा। जैसे सुनील सर ने बताया, एक चमचमाती ब्रांड न्यू मर्सिडीज रेड कारपेट के ऊपर खड़ी होगी हॉल के बाहर,
तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ फोटो ले सकते हैं, बिकॉज कल को आपके घर में भी आने वाली है, राइट और रॉन्ग। उसके बाद एक BMW 3 सीरीज भी वहां पर खड़ी होगी हमारे ग्रेट गुरु आशीष मैथ्यू सर की, राइट। देन उसके बाद एक BMW X1 डॉक्टर शिव कुमार गौतम सर की भी खड़ी होगी। तो 3 लग्जरी गाड़ियों वाला पहला प्रोग्राम है लुधियाना में, ऐसा हुआ नहीं है कभी आज। और उसके बाद बहुत सारे ब्रांड न्यू कार अचीवर जो हमारे बीच में बैठे हैं, आप सबकी भी गाड़ियां सजाई जाएंगी वहां। तो हॉल के अंदर एंटर करते ही जो ऑरा बनेगा ना, यकीन मानिएगा, एंटर करते ही जो ऑरा बनेगा, आपका गेस्ट 90% वहीं तक कन्विंस हो जाए। सारी न्यू गाड़ियां रेड कारपेट पे लगाएंगे, सारी न्यू गाड़ियां रेड कारपेट बिछाएंगे हॉल के बाहर। इमेजिन करके देखिए, बड़ा सा रेड कारपेट बिछेगा, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम मर्सिडीज, BMW, ऐसे करके 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 कम से कम 10, 15, 20 नई ब्रांड न्यू गाड़ियां खड़ी होंगी। मुझे बताइए कौन सा ऐसा आदमी है जो ऐसा प्रोग्राम देखकर हाँ नहीं बोले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है, देखिए कई बार होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती, बिकॉज फैमिली को मालूम ही नहीं होता धंधा है क्या। हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहा, वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट नहीं कर रही, ब्रदर सिस्टर को नहीं कर रहा, तो कब करवाएंगे? ये सबसे आसान मौका है। आपको कुछ नहीं करना, आपको लाकर सिर्फ बिठाना है, इंडस्ट्री का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अचीवमेंट सब दिखाया जाए। और मैं वादा करता हूं, आप अपनी फैमिली को बिठा दीजिएगा बस इस प्रोग्राम में। फैमिली उठने के बाद, प्रोग्राम के बाद आपको खुद बोलेंगे कि चलो मिलके करते हैं। ऐसा हुआ है हमारे साथ, हमारी फैमिली भी ऐसे ही कन्वर्ट। तो आर यू रेडी? क्या पक्का तैयार है? तो टिकट्स हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन टिकट्स लेने के लिए आप नहीं आएंगे मेरे पास, आपके NTC लीडर्स को आप अपने नंबर दिखाइए, नंबर दीजिए, राइट, और अपना टिकट्स ले लीजिए कैश पेमेंट करने के बाद, बिकॉज बाद में टिकट मिले ना मिले ये भी कोई गारंटी नहीं, राइट। तो NTC नंबर लीडर्स मेरे से टिकट ले लीजिएगा, और उसके बाद आप जो भी आप टिकट चाहिए होगा तो NTC को दे दीजिए। तैयार है? पक्का तैयार है? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम? देखिए, मैं चाहता हूँ इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, 2026 खत्म होने से पहले पहले इस प्रोग्राम को यूज करके हफ्ते का 2,10,000 पहुंच जाए। आर यू रेडी फॉर दिस? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एक बार आपने टिकट के पैसे दे तो सर के लिए कैसी क्लैपिंग होनी चाहिए? और इससे काफी जबरदस्त है। बहुत सारी नॉलेज मिली इस टाइम, ठीक है। आप लेकर जाइए जिसको लेके जाइए। नहीं, सब लोग लेते हैं अपना काम। अप्लायंस जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। जो अप्लायंस है आगे के अपने पास से ले लीजिए, ठीक है। जितने जिसके चाहिए वो ले सकते हैं आप। थैंक यू। सभी लोगों से बोलूंगा, सभी अपने टीम से किसको कितने टिकट चाहिए, और अभी टिकट का पेमेंट देके अपने अपलाइन को अभी बुक कर ले।